Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today we are going to learn exercise of unit number 3, Anansi and 5, because we already done its words to know and reading and translation of this unit. So let's move towards exercise of this unit. First of all, answer question. Our first question is, what was the witch's name and why didn't she like it? The answer of this question is, the witch's name was 5. She did not like it because all through her life people had laughed and looked surprised when they heard that was her name. Look at the next question. What was the witch doing in her garden? The witch was stirring her big cooking pot and saying a spell in her garden. Why was Anansi pleased? Anansi was pleased because he heard the witch and he thought he would be able to use her spell to make some money and get some food. What was the first animal that Anansi tricked? The first animal that Anansi tricked was Mrs. Rabbit. Which animal were not fooled by Anansi? Miss Frog and Mrs. Shrew were not fooled by Anansi. What things could you buy in the market? At the market, you could buy yams, beets, pulses, grains, sweet potato, pies, and mouth-watering delicacies. Why was Mrs. Shrew going to the market and what was she going to do there? Mrs. Shrew was going to the market to try to sell the pies she had made. She wanted to buy some mouth-watering delicacies for her family at the market. Why did Anansi get angry with Mrs. Shrew? Anansi got angry with Mrs. Shrew because she would not say the number 5. How many characters are there in the story? You have just read, make a list. There are 6 characters in the story: the witch, Anansi, Mrs. Rabbit, Mr. Duck, Miss Frog, and Mrs. Shrew. Look at the next question. What clues are there in the story which tell us that Anansi was not a nice spider? Look at the clues. Anansi was not a nice spider. He is a trickster. His calls, his first thoughts upon hearing the witch are that he can use it to his advantage. He is dishonest. He tricks nice characters. He did not share his food. He does not think about his family and he gets angry when things do not go the way he wants them to. Look at the next question. Fill in the blanks with suitable words from the story. Anansi was a trickster and he was having a dash time. He was having a difficult time. Anansi dashed through a gap in the witch's fan. Anansi peeked. He imagined what dash foods he would find delicious.
A dash sound pulled Anansi from his daydream. SCURRYING, squaring. She walked to the dash mound and stood on it. NEAREST, nearest. Anansi dashed and showed all his sharp teeth. Grind all his sharp teeth. Look at the next. Answer the questions about these lines from the story. 1, 2, 3, 4, and this one that I am sitting on. Who says these words? Mrs. Shrew. What is the speaker counting? Mount on earth. Why does the speaker say and this one and I am that I am sitting on? Mrs. Shrew avoids saying the number 5. She was not a fool. She guesses that Anansi is trying to trick her. She knows he wants her to say all the numbers, so she does not do it. What happens after this? Anansi gets so cross that he says the number and disappears. Okay, look at the challenge. What is the moral of this story? The moral of the story is that greed will bring you trouble. You could also say that causing trouble for others bring you trouble. Look at the next. See if you can find the answers of the following descriptions. Unscramble these 4 words to use in the spaces. सबसे पहले COTORD लिखा हुआ है, इसको हमने सबसे पहले क्या है, इसका वर्ड बनाना है DOCTOR, डॉक्टर. नेक्स्ट है NETDIST, DENTIST, dentist. RUNES NURSE, nurse. CHARETEACHER, teacher. Now look at the first sentence. A person who treats people who are sick. कौन करता है? DOCTOR, doctor. A person who looks after people in a hospital is a NURSE, nurse plus doctor दोनों हो सकते हैं. A person who helps children to learn is a dash, TEACHER, teacher. A person who looks after people's teeth is a DENTIST, dentist. Next question देखें. Who are the following people? Write 3 or 4 sentences like those above about the people shown below. यहाँ पे कुछ हमारे पास लोग हैं जो कि कोई ना कोई काम कर रहे हैं. तो काम बेसिकली जो ये कर रहे हैं वो प्रोफेशन है. मतलब ये कि काम प्रोफेशन को कहते हैं, पेशे को कहते हैं. जैसे यहाँ पे हमें एक बंदा झाड़ू लगाता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ पे एक बंदे ने ये फल हैं, ये सब्जियाँ हैं वो उठा रखी हैं. एक बंदा जो है वो जूते मरम्मत कर रहा है. एक यहाँ पे पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस भी हो सकती है. जैसे यहाँ पे हम इसको स्वीपर कहेंगे कि रोड को क्लीन करना या फिर किसी भी जगह को, वो इसका काम है. यहाँ पे ये वेजिटेबल और फ्रूट सेलर है. यहाँ पे जो है ये एक कोबलर है. ट्रैफिक पुलिस जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. कोबलर जो कि शूज़ को
जो है वो मेंट करता है। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस इसके बारे में बना सकते हैं। द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑल इन द स्टोरी, फाइंड देम। अब जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके अपोजिट्स ऑलरेडी स्टोरी में मौजूद हैं, तो हमने उन्हीं को इस यहाँ पे करना है। सबसे पहले है इजी, तो इसको हम करेंगे डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नियरेस्ट, इसका होगा FURTHEST, फॉर्थेस्ट। अनकाइंड, काइंड। डिसप्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। अपीयर्ड, इससे शुरू में हम डिस लगाएंगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा डिसअपीयर्ड। लव्ड, हेटेड। लो, हाई। लाइट, हैवी, ये लाइट वेट वाला लाइट है, कम वेट। प्लेजेंट, इसके शुरू में UN अन लगाएंगे तो अनप्लेजेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पंक्चुएशन है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला है अ फुल स्टॉप इज़ अ पॉज, इट सेपरेट्स वन सेंटेंस फ्रॉम एनदर। मतलब ये कि जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं किसी सेंटेंस पे तो फिर क्या होता है कि वो वहाँ तक उसको एक सेंटेंस को मुकम्मल कर देता है और उससे आगे फिर हम सेपरेटली या अलग से नया सेंटेंस शुरू करते हैं। अ कॉमा इज़ आल्सो अ पॉज, इट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू शो अ शॉर्ट पॉज। मतलब ये कि जो हम कॉमा लगाते हैं ये भी एक वक्फा होता है, ठीक है, जो कि ये शो करता है कि यहाँ पे एक छोटा या फिर शॉर्ट पॉज है, ये वक्फा है। सेमी कॉलन लुक लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है सेमी कॉलन। इट शोज़ अस, ये हमें ज़ाहिर करता है डेट देयर इज़ अ पॉज इन अ सेंटेंस, के जुमले में जो है वो पॉज या फिर वक्फा है। अ सेमी कॉलन शोज़ अ पॉज लॉन्गर देन अ कॉमा, मतलब ये कि सेमी कॉलन जो है ये जो पॉज को या फिर जो है वो वक्फे को शो करता है लॉन्गर देन अ कॉमा, एक कॉमे से लंबा, ठीक है। कॉमे का वक्फा जो होता है वो छोटा होता है, इसका वक्फा लंबा होता है, बट शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप, लेकिन जो फुल स्टॉप होता है उससे ये कम होता है। Separate these sentences using semicolons, commas and full stops. Don't forget to start each new sentence with a capital letter. मतलब ये कि हमें ये सबसे पहले याद रखना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस है तो वो कैपिटल लेटर से हम उसको स्टार्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये रॉन्ग है, ही जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे ही का एच स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, एच को कैपिटल कर देंगे। ही शूट एन एरो, एरो मतलब ये कि यहाँ पे एक हम कॉमा लगाएंगे। दे जस्ट वॉच्ड, और एंड पे क्या होगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में हमने कितनी चेंजिंग की, हमने फुल स्टॉप लगाया, कॉमा लगाया और फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल कर दिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी हमारे पास जो सेंटेंस है वर्ड है दे का टी कैपिटल नहीं है तो हम इसको कैपिटल करेंगे। दे वर गुड आर्चर्स, यहाँ तक एक बात मुकम्मल हुई है और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। ही वॉज गुड एट एवरीथिंग, बात पूरी हो गई, फुल स्टॉप। जी नेक्स्ट देखिए, द डॉग डिड नॉट डाई, इट कुड नॉट बार्क और ईट। दा का टी कैपिटल आ जाएगा। द डॉग डिड नॉट डाई, डाई के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इट कुड नॉट बार्क और ईट, एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। I have 2 brothers, Numan and Khalid. He has a sister, Aisha. अब I जो है वो कैपिटल, have 2 brothers यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। नुमान चूँकि नेम है, नाउन है, तो इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देंगे एंड खालिद के कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पे फिर कॉमा आ जाएगा, ठीक है। आई हैव 2 ब्रदर्स नुमान एंड खालिद। उसके बाद ही हैज़ अ सिस्टर, कॉमा, नाम उसका क्या है, आयशा, आयशा का ए कैपिटल आएगा क्योंकि नाउन जहाँ कहीं पे भी आएगा, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटर या एंड पे, तो वो कैपिटल फॉर्म में हम लिखेंगे। वी लाइक टू स्विम एवरी डे, शी डज नॉट।
वी का W कैपिटल लिखेंगे, लाइक टू स्विम एवरी डे, कॉमा शी डज नॉट, एंड पे फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट देखें एडवर्ब्स। चूज सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू ऐड टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो। मतलब ये कि हम ये हमारे पास एडवर्ब्स दिए गए हैं, इनको हमने चूज़ करना है और लिखना है इन सेंटेंसेस में। अच्छा जी, सबसे पहले देखें ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर। इसमें से हम येस्टरडे को शुरू में लिखेंगे, YESTRDAY, येस्टरडे ही रोट अ लेटर। यहाँ पे स्विफ्टली भी आ सकता है और केयरफुली भी आ सकता है, दोनों में से जो भी। स्विफ्टली और केयरफुली टू हिज सिस्टर। He faced the tiger which was leaping at his throat. अच्छा, इसमें क्या है कि ही, यहाँ से हम इसका एडवर्ब ब्रेवली, ब्रेवली, he bravely faced the tiger which was leaping at his throat, which was swiftly, क्या लिखेंगे, swiftly leaping at his throat. The man with the bad leg slowly, SLOWLY, slowly climbed the mountain track. The arrow flew, यहाँ से हम क्या लेंगे, straight. The arrow flew straight through the air at the target. I am going to my father's house. I am going to my father's house. Immediately भी हम लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें जो है वो tomorrow भी लगा सकते हैं at the end of the sentence. The man with the bundle shouted at his donkey. The man with the bundle shouted loudly at his donkey. The girl danced but did not sing at all. The girl danced beautifully. The girl danced beautifully but did not sing at all. The boy sped down the steep road on his cycle. The boy sped straight down the steep road on his cycle. Writing questions. Change the following into questions. सिंपल हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको हमने सवालिया जो है वो बनाना है। तो जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें एक बात का सबसे पहले पता है कि हम ये क्वेश्चन मार्क उसके एंड पे लगाते हैं, जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना सादा जुमले में। इसी तरह से जब भी हम कोई सेंटेंस ऐसा लिखते हैं जिसमें कोई सवाल किया जाए या पूछा जाए तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सेल्समैन कैन ट्रैवल फार। अब ये जो कैन है इसको हम स्टार्ट में लेके आएंगे। कैन यहाँ पे स्टार्ट में था तो कैपिटल था, अब जब सेंटर में आएगा तो स्मॉल हो जाएगा। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, कैन अ सेल्समैन ट्रैवल फार, और आगे उसके क्वेश्चन मार्क। सोडियम बेंजोएट हैज़ अ पर्टिकुलर स्मेल। अब इसमें हम क्या करेंगे कि स्टार्ट में हम डज लगाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे हैज़ है उसको हम हैव में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ द होटल्स रूम्स आर नॉट एक्सपेंसिव। आर को हम स्टार्ट में ले आएंगे, आर यहाँ पे टी स्टार्ट में कैपिटल था तो हम इसको स्मॉल कर देंगे, अब दरमियान में आ रहा है। आर द होटल्स रूम नॉट एक्सपेंसिव, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे। द कैश ड्रॉर इज़ फुल ऑफ नोट्स।
इज़ को स्टार्ट में ले आएंगे, टी को स्मॉल कर देंगे। इज़ द कैश ड्रॉअर फुल ऑफ नोट्स, क्वेश्चन मार्क। सिबी इज़ अ प्लेस इन बलोचिस्तान, इज़ को स्टार्ट में ले आएंगे। इज़ सिबी, सिबी का एस कैपिटल ही रहेगा क्योंकि जगह का नाम है। इज़ सिबी अ प्लेस इन बलोचिस्तान। द सेल्समैन्स गुड्स आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट, आर को हम स्टार्ट में ले आएंगे, टी कैपिटल से स्मॉल कर देंगे। आर द सेल्समैन्स गुड्स ऑफर्ड एट डिस्काउंट, एंड पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इतनी ही है। उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।